when it comes to the digital world, I must say I have seen the digital taking over the whole world, and Samsung, being a tech company, was not as digital as it was 3.5 years back. We have transformed in multiple steps in terms of running our operations and in terms of doing quite a lot of things which we were doing manually. Now we have actually moved everything. Even the payments to the retailers has gone digital. So and the media expense that we were doing, about 80% used to be TV and 20% digital. Now it is 80% digital and 20% regular, and which is probably going to go away as well. So Excellent. my experience with the digital world is a very enriching me a lot, and I'm learning a lot. So I want to learn from this group as to what's going on, and what can I Inshallah. share a little bit. I can definitely share with you guys. Inshallah. Thank you very much. थैंक यू सो मच, थैंक यू उमर। असफर साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Right, my name is Asfar Beg. Am I laudable to everyone? जी 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 Okay. Yes. My name is Asfar Beg. I had, after spending 20 years in IT, telecom, and cybersecurity, I had started my own setup with the name of Canfor Consulting. We are the cybersecurity service provider in Pakistan, and we had simultaneously launched in Pakistan and UK. And currently, our head office in Pakistan and the site office in UK. And from the cybersecurity perspective, what we had done, we had, carrying a new concept in Pakistan, which is virtual CISO, because the cybersecurity skill set has been in shortage in Pakistan. So everyone is going virtual. So we are carrying a new product in Pakistan, that is virtual CISO, because every organization cannot afford a full-time CISO. The small business and every business should have a security resources, because the need is being growing on, and the challenges and the security concerns are being going on. So everyone should need a security resources, but due to the shortage, we are in the consulting company comes into the market and providing the security services virtually to every organization. And we have a plan to enhance the footprint in the major cities of Pakistan, starting from Islamabad, Lahore, and Karachi. But we are targeting for Faisalabad as well, for Sialkot as well, for the industry purposes. And so this is it from my side. थैंक यू असफर। गुलाम मुस्तफ़ा, आप अपना छोटा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें। Assalamualaikum everybody. I'm Ghulam Mustafa, working for Oracle. I've been with Oracle for last 12 years. I worked as a director for the customer care and customer success, and currently I've switched to Innovation Hub. There is an initiative in Oracle APAC wide where we are doing artificial intelligence, machine learning, and some state-of-the-art technologies that are applicable to all the industries in APAC. So currently, this initiative will help the countries like Pakistan and South Asian all countries to bridge to go to the innovative solutions and to reap the benefits of the latest technologies. So before that, I worked for the government of Pakistan for Ministry of Finance Automation PIFRA project. I was director there. So I think I have almost 22 years of experience in public and private sector both. So this is it from my side. Excellent. जी इजाज़ साहब। इजाज़ साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही इजाज़ साहब। ओके, सो ज़्यादातर लोग जो हैं वो नमाज की तरफ हैं अभी। बहुत सारे लोगों ने भी ज्वाइन करना है, बिकॉज वी हैव अ ग्रेट नंबर ऑफ मेंबर्स। तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन को भी स्टार्ट कर लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज एक होगा ये कि ज़ाहिर हमारा एक मेजर डिस्कशन जो है वो आज का हमारा टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसफॉर्मेशन पे है।
and to understand कि जी हमारी adoption in business sector वो हम किस लेवल पे हैं, तो इंशाल्लाह हम सबसे ही डिस्कस करेंगे. मीनवाइल क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होंगे तो शायद बहुत ज़्यादा सबको मौका ना मिले कि हम ज़्यादा लेंथी इस पे डिस्कशन कर सकें, बट हम ज़रूर ये चाहेंगे कि जो है वो इनपुट जो है वो हम ऑलमोस्ट जो है जितने भी व्यूअर्स हैं हम सबसे ले सकें. सो आई थिंक वी स्टार्टेड इट फ्रॉम के क्या हमारे बिजनेसेस पाकिस्तान में जो हैं आर दे एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटाइजेशन और टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन को वो अंडरस्टैंड भी करते हैं, क्या उसकी इम्पोर्टेंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं अगर हम सिर्फ पाकिस्तान सेक्टर की बात करते हैं. तो आई थिंक इट्स एन ओपन क्वेश्चन. मैं सबको ही इनविटेशन दूंगा कि हम इस पे बात करें. सो I think I'll start from Rahim sir. Kamal, if you allow me, I think it's pretty much relevant to my experience and the day-by-day routines that we are following with Oracle and the customers. So, if you allow me a few minutes, I can emphasize a bit. So, our technology adaptation by Pakistani industry is pretty slow. Since I am working for APAC, the Asia Pacific and China region, so when we compare the adaptability and readiness for the new technologies, it's pretty on the lower side. I mean, we can let's assume that let's compare this with Malaysia, with Singapore, with ASEAN countries, even South Asian countries, Sri Lanka. So our readiness for technology and adaptation is pretty slow. But with this COVID-19 situation and all that, I believe that it's a very good opportunity for us to move towards the latest technologies, cloud technologies. So that is my take on this. So over to you. रहीम साहब, हम आपसे थोड़ा सा इनपुट लेना चाहेंगे इस पे. So I think जिस तरह गुलाम साहब ने कहा, I think technology adoption is still behind. अगर हम अपने नेबर्स को देखें या साउथ ईस्ट एशिया में बात करते हैं, and clearly Europe, UK in the markets which are way ahead. Financial services में भी आप देख लें तो there are banks, digital challenger banks globally, जहाँ पे you can open an account in 30 minutes. पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं है. उसकी दो तीन वजहें, एक रिस्क एपेटाइट फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत कम है, तो द एबिलिटी टू चेंज उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में गिवन द लो रिस्क एपेटाइट. हाउएवर, all said and done, during COVID we have issued guidance circulars to the corporate sector. Board meetings are being held digitally. We are holding our hearings and appellate bench proceedings all digitally as well. So shift I think that shift will get accelerated because of COVID. Okay. Because I work very closely with the startups and the fintech sector, so there are a lot of new business models coming in, a lot of people coming up with new ideas and using technology as a medium to solve real business problems. So that there is an uptick definitely, especially for the new companies. However, unke apne challenges hain, and then there are other issues around how they can scale up quickly. So we're trying to work. There are different government bodies as well as regulators who have to play their part in terms of helping these companies scale up. But in summary, I think the process will get accelerated. The investments will definitely go up, and it will help overall building an overall digital ecosystem. Okay, fine. थोड़ा सा अगर आप उसका सैंडबॉक्स का भी बता दें. इट वाज एन इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट. आई हैव हर्ड, मैं बल्कि CDC में आया भी था. आई वाज इन द मीटिंग एज वेल. तो थोड़ा सा उसका भी अगर आप शॉर्ट सा बता दें. So the sandbox concept we had launched earlier this year, and the idea was similar. एक तो products की बहुत ज़्यादा demand थी industry से, that we should start regulating those, or people wanted to start up those businesses, but given the lack of regulatory framework, they can't start legally those businesses.
So that is the idea. So we wanted हम तो एक particular specifically capital raising side पे काम कर रहे थे coming up with the regulatory framework, but then we thought why not allow and expand this model to give people an opportunity to also do what we want to do, but also see what kind of ideas and new business models are coming. So I think we launched in Feb. We asked people to apply. COVID period we gave some extension. So in total, we got about 32 applications Okay. for the industry. First round of screening के बाद we have shortlisted about 13. Moving on to the second round of evaluation. And once that process ends, what we will be doing is giving approval, regulatory approvals, without having a regulatory framework. So people Okay. can do real business in a controlled environment Okay. and with certain restrictions and conditions, and it will give us the ability to work with them, guide them. Our idea is that at the end of the cohort, we issue full scale licenses and approval. Okay. So जो भी applications हैं जो schemes हम देख रहे हैं, so one is crowdfunding, the second is digital insurance, third is digital saving, specifically around mutual funds, fourth is digital identity, Okay. and fifth I would say is robo advisory or P2P lending. So these Okay. are the areas which we have shortlisted. Excellent, sir. Excellent. So we have कामरान अहमद, एजाज अनवर. एजाज आपका उस वक्त माइक नहीं काम कर रहा था, तो अगर शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें. जी सर, फॉर सम रीज़न आई एम हैविंग सम चैलेंजेस के थोड़ी देर के बाद जो है ये डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरे पार्ट पे, बट एनीवे आई एम फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री फॉर द पास्ट 15 years जो है किसी ज़माने में यहाँ लाहौर स्टॉक एक्सचेंज होती थी. So basically, I was part of that. For the last 10 years, I have been working in the markets in Africa, mostly Middle East currently, जिसमें कैपिटल मार्केट अथॉरिटीज़ जैसे FCCP हमारे यहाँ है, उसे लेके डिपॉजिटरी कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकरेज इंडस्ट्रीज, तो इन सब में जो है डिप्लॉयमेंट्स प्रोजेक्ट और इनकी ऑटोमेशन जो है वो उसमें मैं इन्वॉल्व रहा हूँ फ्रॉम इंसेप्शन टू द डिप्लॉयमेंट. एक्सीलेंट एजाज. कामरान साहब आप अपना जरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दें. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम जी कामरान अहमद सिद्दीकी है. 21 years आई हैव बीन एसोसिएटेड विद एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कम्युनिकेशन. कोई 2010 में आई मूव टू यूएई एंड वहाँ पर मैं तकरीबन 10 साल मैंने मार्केटिंग, ब्रांड एक्टिवेशन और डिजिटल पे काफ़ी क्लाइंट्स को मीना रीजन में, मिडल ईस्ट रीजन में सर्व किया है. 2018 I came back and I started my own agency here in Karachi. One principal office is still in the UAE and is operating, and network office in Pakistan by the name of Beyond Borders, and we are working again in terms of consumer engagement, brand activations, and shopper marketing is our expertise. How to connect brands to their core customer and keep them trying their product, and how customer go and why should he pick up some certain brands from the market in a continuous manner. This is our strategy and this is our goal. We connect to brands and provide them sales guidelines and in all fashion, like physical and as well as digital. Thank you. Excellent. Thank you, Kamran. Iftikhar साहब, are you You're there? welcome. Iftikhar. Yes, assalamu alaikum. Walaikum salam. So Iftikhar is actually leading one of the leading organization in Pakistan. Iftikhar, आप अपना introduction दें. माशाल्लाह, you guys are doing great. बताइए. जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा ताल्लुक जो है वो MNP मुलर इन्वेस्ट पाकिस्तान से है. एक्चुअली इंट्रोडक्शन से ज़्यादा सिंपल से बताया तो मुलर इज़ अ लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन पाकिस्तान. हम मेनली तमाम बिजनेसेस के अंदर इस वक्त एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज कोरियर, एज मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज और अब ई-कॉम प्लेयर के तौर पे भी पाकिस्तान में काम कर रहे हैं. तो वहाँ का जो IT है, वहाँ का जो B2B है और B2C सेगमेंट्स हैं, उसको मैं लीड कर रहा हूँ. Excellent. So हमारा मीटअप जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल होता है. हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल कॉन्फ्रेंस टाइप का नहीं रखते. वो
this is just to we know each other और हम किसी एक टॉपिक पे बात करें. So we float a question कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेंस है डिजिटाइजेशन की into the businesses, large businesses तो हम समझते हैं कि मेजर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज है, they understand digitization and ट्रांसफॉर्मेशन और जितनी भी टेक्नोलॉजी की एडाप्टेशन है. बट ओवरऑल जो एक मेजर बिजनेस हमारा पाकिस्तान का है वो क्या इस इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड भी करता है और हम लोग एडाप्टेशन में कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इसमें रहीम साहब अपना एक इनपुट बड़ा अमेजिंग दे चुके हैं, गुलाम मुस्तफ़ा साहब भी दे चुके हैं. तो आई थिंक हम उमर से स्टार्ट करते हैं. उमर हैज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस स्पेशली इन कंज्यूमर इंडस्ट्री भी और बिजनेस साइड भी. सो उमर, हम आपका इनपुट लेना चाहेंगे इस पे. Can't we see everyone on in a great form? उमर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आप लोग, मुझे कोई नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे. स्वाय एक पिक्चर जो स्टैटिक हो जाती है, कमल या तो आपकी आती है, तो ये इसमें ग्रिड नहीं बन सकता है कि सारे लोग एक दूसरे को देख सके हु इज देयर. ये ग्रिड बना हुआ है, ये ग्रिड बना हुआ है. ग्रिड यार सबका, आप मोबाइल से हैं तो शायद इस वक्त आपको ग्रिड नहीं नजर आ रहा होगा. जी, मैं मोबाइल से हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही पिक्चर नजर आ रही है. जो लैपटॉप से आ रहे हैं तो उनको सब नजर आ रहे हैं, उसको ग्रिड नजर आ रही है. जो मोबाइल से हैं तो मोबाइल पे ग्रिड नहीं नजर आ रही. अच्छा, ठीक, चलो, दैट्स फाइन. ओके, मैं थोड़ी सी इसमें, अब मेरी आवाज क्लियर है जी आप लोगों को? जी बिल्कुल क्लियर है. Okay, I just मैं थोड़ा सा few days back I went to LAMS before this lockdown and I was talking to students about the digital transformation. So I thought I should do some research and I did some research before going and talking to the students. वहाँ से मैंने कुछ चीजें डिस्कवर की थी. मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बताना चाह रहा हूँ. When I started looking at how the digital transformation happened, but I actually started going a little backwards, about 100 years back. 100 years back ये हुआ करता था दुनिया में कि जो दादा करता था वो क्रॉप्स लगाता था और फिर उसके बाद क्रॉप्स काटी जाती थी और उसके बाद वो अपने कुछ अरसे का अनाज रखते थे और उसके बाद रिमेनिंग जो है वो बेच के अपना गुजारा करते थे. उसका बेटा भी यही करता था और उसका पोता भी यही करता था. So, only 100 years back, this used to be the way the world used to be. फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस और इंफॉर्मेशन का दौर वो सारा आना शुरू हुआ. अब करते अब हम, if you just travel 100 years now and reach over here and we realize कि जो दादा, बेटा, पोता और पोतों के अंदर भी दो भाइयों के दरमियान में जनरेशन गैप इतना ज्यादा आ चुका है कि everyone is going in their own way because of this digital transformation. So we have reached an age where Airbnb does not have any hotels and they sell the rooms in the hotel. And the hotel people say, we do not know how to run a hotel business anymore because Airbnb does it better than us. अगर आप Netflix देखें, they don't have practically a channel and the channel is everywhere in everyone's house and you can practically access anywhere. इसी तरह Amazon का देखें, Amazon किस तरह से कोई बड़े stores नहीं है, उनके warehouses हैं लेकिन they don't have the stores but they are probably the biggest in the world at the moment in the e-commerce and the store side. So अब ये क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की अगर बात करना शुरू करें, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. When I joined this tech company about 3.5 years back, for those who joined just now, I work for Samsung as head of business for Pakistan and Afghanistan for mobile division. So in 3.5 years, I saw so much transformation in my own company. We were giving the incentives to the retailers through एक LP से हम कहते थे कि हम छोटा सा एक पीस पेपर लगाता था, वो काटता था, वो जमा कराता था. आप किसी शॉप पे जाए, वो कहता है यार इस लिफाफे के अंदर 26 लाख रुपए का इंसेंटिव पड़ा हुआ है और मुझे पता नहीं है कि मैं अभी कब रिवर्स कराऊंगा, बट ये सिटिंग ऑन माय साइड वाली टेबल पे पड़ा हुआ है. नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. के साथ ये हुआ है कि हम टेलीनॉर इजी पैसा के थ्रू हम लोग अपने महीने का 1.5, 2, 2.5 समटाइम $4 लाख का इंसेंटिव डिस्पर्स कर लेते हैं
with a lot of ease. But to transform this was a difficult task because most of the retailers were not willing to give away their own financial information to the banks. And they would only complain कि जी पहले वाला तरीका अच्छा था, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? लेकिन 3-4-5 महीने के teething problems के बाद जब यहाँ पहुंचे हैं तो अब it is very easy and now everyone looks up to it and हिसाब किताब 20-25 दिन के अंदर सारा clear हो जाता है. So it has become very easy for us, but it was very difficult to transform. So having said that, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा अपना इजी पैसे का अकाउंट मैंने जस्ट ट्राई किया था और मैं आपको बताता हूँ कि एक दिन मैं बीमार हो गया. मेरा बेटा बीमार था, हमने कहा चलो रिंग डॉक्टर करते हैं. पैसे ट्रांसफर करके 1500-2000 एंड ना डॉक्टर मिल सका ना कुछ हो सका. रात के 12-1 बज रहा, समझ नहीं आ रहा दवाई क्या नहीं. सही. I got skeptical after that. And आपको मैं बताता हूँ अभी भी मेरे कुछ 2-4 हज़ार पड़े होंगे इजी पैसा अकाउंट में और मुझे नहीं पता उसे कैसे यूज करते हैं. So I have some issues myself. मैंने डिजिटल बैंकिंग भी बड़ी देर लेट शुरू की थी. So अब ये है कि डिजिटल बैंकिंग का ये फायदा हो गया कि 21 तारीख को दोपहर को 2 बजे तनख्वाह आती है और 2:45 बजे मेरे पास 1 रुपया भी नहीं होता कि बीवी के अकाउंट में चले जाता है. सही है जी. So डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल एंड ऑफिशियल लेवल पे मैं तो इसको देख रहा हूँ, लेकिन ये कोविड ने चीजों को जो है ना बड़ा स्मूथ आउट कर दिया. वी डोंट हैव मच ऑप्शंस. मैं आपको बताता हूँ हम लोगों को अपनी कंपनी के अंदर सैमसंग के अंदर दिस इज अ क्रेजी बिजनेस. आई वर्क this is not to be proud of, but we work too hard and we have, because there are too many, there's too much competition. There are 16 brands a year we launch and pricing and whatnot. There are too many issues that we face, but we never had a VideoCon. In the last 3.5 years and we discovered we had one of the most sophisticated VideoCon system in Samsung, which I have never seen before anywhere. वो हमने अभी इंस्टॉल किया 1.5-2 महीने पहले. 3-4 दिन प्रॉब्लम हुई है और now everyone in the company knows about it. Now the transformation in our company is also happening, and similar to this, there are multiple other things which we ought to change, and we are trying to change. So पाकिस्तान के अंदर मैं बहुत सारे लोगों से आप एग्री करता हूँ कि चीजें हो रही हैं. there are multiple things. मुझे आज तक नहीं समझ में आता है गोल्ड लूट लो क्या चीज है. मैं टीवी पे क्रिकेट मैच देखता हूँ, कोई टेलीनॉर के लोग मुझे मिले, मैंने कहा अच्छा तुम लोग कर रहे हो, मैंने कहा ये है क्या चीज, करते क्या हो. बस गोल्ड लूट लो चल रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही. आई थिंक Daraz has been successful because they've been able to make it simpler. Google has been successful, YouTube has been successful. सर हमारे पास सिंपलिसिटी लाना बड़ा जरूरी है. हमारे पास इफ्तिखार की जो है बड़ी एक सक्सेस स्टोरी है. इंशाल्लाह वो हम थोड़ी देर में इफ्तिखार को हम छेड़ते हैं. कमल मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा उमर की कुछ बातों के अंदर. इफ्तिखार मैं आपसे अभी लेता हूँ फीडबैक. हम जरा ये जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स आए जिसमें सैयद फराज भी हैं, यासिर भी हैं, रदनान जफर भी हैं, तो वी जस्ट से देम हेलो एंड आप तीनों अपना शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन भी दे दें. फराज, यासिर एंड अदनान. फराज आप भी दे दें. फराज आपकी आवाज नहीं आ रही, वी कांट हियर यू. आवाज आ रही है. सबसे पहले अपोलोजाइज, सॉरी. फराज आपकी आवाज नहीं आ रही है. आई गेस इनका वो इंटरनेट का कोई है. यासिर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई एम यासिर. I am currently working at Tata Pakistan as head of IT. I have been associated with IT industry, specifically manufacturing industry, for last 12 years. So previously I was working at IIL as a head of business application. Before then I was working with Dollar Industries Private Limited, and before that I was working with the Hino Pakistan. So a little most of experience is actually working with the manufacturing industries. And currently I'm associated with Tata Pakistan, and there I am working actually on different areas right now, and specifically in implementation in BI area, and also streamlining the ERP system, because the ERP system that they have implemented way back in 2011, but it was not that streamlined. So still there are a lot of gaps, and business process reengineering is required over there. So we are working on that.
in fact, IoTs, we are connecting our machine as well on IoT devices. So there are several projects currently I'm working on like these projects. So Thank this you. is Thank you, little Yasser. about myself. थैंक यू यासर। Welcome. फराज आप देखिए, अब आपका Sorry. फराज जी, अब आप जी इंट्रोडक्शन दे दें आपका, क्योंकि वो अच्छा, डिस्कनेक्ट हो मेरा गया था। रह गया था, हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। So my name is Syed Faraz Javed and I am the Chief Information Officer at NeaPay. NeaPay is a e-money institution and we offer peer-to-peer and peer-to merchant service, digital payment services. So this is my introduction and NeaPay. एक्सीलेंट, थैंक यू फराज। अदनान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कवल, गुड टू सी यू जी एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका और इस इनविटेशन को और सबको भी। मेरा ताल्लुक बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है। पावर प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें पावर केबल वायरिंग है और हमारी कंपनी का नाम यूनिवर्सल केबल्स है। इसके साथ साथ हम लोग हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें बेबी डायपर्स, सैनिटरी पैड्स और इंशाल्लाह भी 1-2 प्रोडक्ट्स भी हम लोग इस्तेमाल इंट्रोड्यूस कराएंगे। जो हमारी तीसरी कंपनी है उसके अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं। बेसिकली हम लोग बहुत सारे पार्ट्स मंगवाते हैं पावर रिलेटेड, उसके अंदर पावर कंपनी को देते हैं जिसमें गवर्नमेंट के डिस्कोस भी शामिल है और केई भी शामिल है। और फिर हमारी एक और कंपनी है जिसके अंदर हम लोग लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये एक बेसिकली मिक्सचर है जिसके अंदर FMCG, पावर सेक्टर और लॉजिस्टिक्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू अदनान जी। इफ्तिखार, इफ यू आर देयर आप अपना कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं आज के जो टॉपिक से रेलेवेंट एक थोड़ी सी डिस्कस करूँगा चीज़ों पे। यूजुअली काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा ना क्रिटिक्स के ऊपर भी जाऊँगा। देखिए, मुझे तकरीबन इस इंडस्ट्री में कोई 22 साल से ज़्यादा हो गए एंड आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी FMCG यूनिलीवर से, और उसके बाद यूनिलीवर में तकरीबन कोई MNP के अंदर कोई तकरीबन 70 के करीब प्रिंसिपल्स के साथ इंटरेक्शन भी रहा है। बहैसियत एक कौम, मैं एक बात बताऊँ आपको कि हम कभी भी प्रोएक्टिव नहीं रहे। जो हम बात करते हैं ना कि डिजिटल पाकिस्तान के अंदर कैसे बनेगा, इट्स अ रिएक्टिव कॉम। आपको याद होगा शुरू में हमारे ज़माने में जब हम सर्टिफिकेशंस की बात करते थे तो एक ज़माना था कि जब पाकिस्तान में हाईएस्ट सर्टिफाइड बंदे हुआ करते थे, क्योंकि एक ट्रेंड चलता था। तो ये मैं ये बात कहूँगा कि जो टेक्नोलॉजी के अंदर ना हम क्यों स्लो रह गए, क्योंकि एक चीज़ तो ये कि हम अपनी लर्निंग्स कभी शेयर नहीं कर सके किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे। दूसरा, हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आप किसी भी जगह पे अगर कोई बंदा ERP इस वक्त इम्प्लीमेंट कर रहा है तो उसकी वजह ये है कि वो पिछला ERP ख़त्म हो चुका है, नई मैनेजमेंट आ गई है। आप उससे कभी कोई एक्चुअल रीज़न पूछेंगे ना तो ये नहीं पता चलेगा कि वो लास्ट ERP सही काम नहीं कर रहा था। देयर आर बट डिफरेंट रीजंस। इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है। तो बहैसियत कौम इट्स अ वेरी जनरल थिंग कि पाकिस्तान जो है वो अडेप्टेबिलिटी उसकी स्लो है, लेकिन इट्स अ वेरी रिएक्टिव कौम। अभी इस कोविड के अंदर अगर आपको मैं जनरल आइडियाज़ दूँ, पहली चीज़ तो बिल्कुल उमर की बात सेकंड करूँगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में अब इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें मोबाइल यूज़ करना भी नहीं आता था, वो अब सारे के सारे टीम के ऊपर, जूम के ऊपर और डिफरेंट मीडियम के थ्रू आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि चॉइस नहीं रही। इसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर, VPN के ऊपर खर्चा करने के बारे में 10 दफ़ा सवाल करती थी, पहला बजट ही उसका अप्रूव हो गया। तो एक चीज़ तो इसमें मैं कहता हूँ ब्लेसिंग डिस्गाइज के कोविड ने हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड को बड़ा बूस्ट दिया है। मैं सिर्फ एक सिंपल सा केस स्टडी बताता हूँ मुलेन फिप्स की कि B2B बिजनेस हमने स्टार्ट किया, कोई जनवरी के अंदर किक ऑफ किया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम तकरीबन ये क्लेम करते हैं कि 1 लाख कस्टमर्स को हम टैप करते हैं। 1 लाख कस्टमर्स के अंदर हमें 1 साल लगा कि उनको डिजिटल पेमेंट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये कर लो तो क्या होगा। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज के थ्रू इजी पैसा आप ले लें या कोई भी और नाम ले लें, जैज़ कैश के हवाला, मतलब सब के सब स्ट्रगल कर रहे थे। क्या रीज़न थी कि जी फिजिकल पैसा जब तक नहीं देखेंगे, वो फिजिकल पैसे की अहमियत को आप चेंज नहीं कर सके। अब जब कोविड आना शुरू हुआ तो आप यकीन करें विद इन 40 डेज वी हैव टैप 40,000 कस्टमर्स, जिन्होंने कि सिर्फ इस चक्कर में कि यार अगर मैं ऑर्डर नहीं दे सकूंगा तो मेरे पास डिलीवरी नहीं होगी और मेरी सेल लॉस हो जाएगी, वो सब के सब डिजिटल कन्वर्ट हो गए। तो इस वक्त मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जब भी हम बात करते हैं, चाहे हमारे जो वेंडर्स हैं, ओरेकल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सिंपल सी चीज़ है कि प्रोडक्ट बेचा है,
कभी हमने उस चीज को सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन और एज नेशन हमें ये पता ही नहीं कि हम जो टूल ले रहे हैं उसका मकसद क्या है। आज हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर बात कर रहे हैं तो हमें इसलिए मजा है कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था, वरना शायद किसी जगह पे कंवल साहब हमें चाय पिला रहे होते हैं बिठा के, वो चाय और पैटीज भी नहीं रहे। ठीक है, तो ये एक रिएक्टिव नेशन है। ये इस वक्त आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ये मैं अपनी चाय साथ लेकर आया हूँ सीधे। ये जो रिएक्टिव है ना, मेरा हिसाब से ये कि डिजिटल पाकिस्तान का दिस इज द राइट टाइम कि हम आपस में अपने वो आइडियाज शेयर करें जो हम इस वक्त अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा अगर ज्यादा दें कमल मुझे। अभी इफ्तिखार साहब ने जो बात की और उमर ने बात की, अच्छा एक स्टेप पहले भी है, हमने यहाँ थोड़ा सा स्टेप मैं समझ रहा हूँ। जिस तरह बात की उमर ने कि जी गो लूट लो जो है वो क्या चीज़ है, या अभी इफ्तिखार ने कहा कि जी ERP जो है वो अपसलीट हो गई तो किसी के पास नहीं जवाब बनता। हम लोग जो है ना थोड़ा सा, आप लोग तो माशाल्लाह से एक CTOs और IT के जो गुरुज हैं, तो आप लोग उस तरह से चीज़ें देखते हैं, तो हम थोड़ा ब्रांड साइड और नॉर्मल जो है ना मार्केटिंग जो लोग होते हैं उनसे डे टू डे कन्वर्स कर रहे होते हैं। डिजिटल की जो टर्म है ना वो मेरे ख्याल से कोई मिसकन्फिगर्ड है जहनों में हमारे। एक बहुत बड़ी ब्रांड है, मैं नाम नहीं लेता, नेशनल ब्रांड है, उनके एक मार्केटिंग सर्विसेज के साहब से मेरी बात हो रही थी, तो हमने कहा डिजिटल पे आप लोगों का कोई पोर्टफोलियो हमने मेजर देखा नहीं। तो वो कहता नहीं जी हमारा तो बहुत मैसिव डिजिटल पोर्टफोलियो है और ये है। मैंने कहा जी मैंने देखा नहीं डिजिटल पे कोई आपने कोई ऐसी काम किया हुआ हो। तो उनके जो असिस्टेंट है वो मुझे बता रहे थे कि जी हमने फेसबुक पे बहुत जो है ना बूस्टिंग की है और फेसबुक हम बहुत ज़बरदस्त चला रहे हैं। तो अब वो मतलब एजेंसी और क्लाइंट के सामने बैठ के मुझे बड़ा शौक लगा कि इस इतने बड़े टेबल पे बैठ के जब मैं आपसे डिजिटल की बात कर रहा हूँ, आप मुझे सोशल मीडिया मैनेजमेंट की क्लास दे रहे हैं, वो भी सिर्फ 2 चैनल्स का, उसके बाद आपको नहीं पता कि उसको करना क्या है। तो यहाँ जो एक अंडरस्टैंडिंग है, जो IT के गुरुज हैं वो तो जानते हैं, आप लोग जानते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिसिंग है जो कि ये बताए कि डिजिटल बेसिकली यूनिवर्स है क्या और उसके अंदर चीज़ें किस तरह से इम्प्लीमेंट होती हैं, वो ब्रांड और या जो फॉर बिजनेसेस हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है। यहाँ जो चीज़ें हैं हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेड टॉक अगर टेड टॉक जो है जिस तरह की चीज़, या एक कॉन्फ्रेंस, या एक क्वार्टरली हम जो है ब्रांड के लिए, जो ब्रांड मार्केटिंग के जो सर्विसेज के लोग हैं उनके लिए हम जो है सेशंस ऑनलाइन, या एक अब मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई किस तरह से वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए कोई सेमिनार फिजिकली अरेंज करें, मगर इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। एज अ मार्केटिंग सर्विसेज या मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग गाय, मैं ये समझता हूँ कि जी जब हम सीनियर लेवल पे जाते हैं, मोस्ट सीनियर लेवल पे अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि जी चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं, क्या हो सकती हैं, मगर जब आप उनकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं तो आपको पता चलता है डिजिटल पे कोई काम नहीं हो रहा। एक बहुत ही मिसकॉन्फ़िगर्ड कॉन्सेप्ट बना के हवा दे के आपने जितनी डिजिटल एजेंसी, सॉरी टू से मैं भी एक डिजिटल एजेंसी हूँ और उसमें थोड़ा बहुत हम भी काम करते हैं, अगर जितने भी डिजिटल एजेंसी काम कर रही हैं उसमें 80% दे ऑफर सोशल मीडिया मैनेजमेंट। क्यों? आई डोंट नो, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर है, या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस नहीं है, या करने से डरते हैं, या ब्रांड नहीं मानती। हमने अभी कोविड की सिचुएशन में लोगों से कहा कि जी ये है, इस तरह से देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन दिस क्रिटिकल टाइम, हमें डिजिटल पे इस तरह से मूव करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। कहते हैं क्या जरूरत है, मान तो हमारे दिखता है, ठीक है ना, और तो कोई है नहीं। तो वो जो है हम तो फेसबुक पे बात कर रहे हैं ऑलरेडी। हम इस पे फीडबैक लेना चाहेंगे भी, फराज का भी, एजाज साहब का भी, आप अपने फीडबैक दें। IT एक अलग है, IT के लोग आप लोग बात करें, मैं एक जनरल ब्रांड मैनेजमेंट साइड के ऊपर बात करूं कि क्या हमने कभी देखा है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि अपनी जो ब्रांड मैनेजर्स हैं या मार्केटिंग मैनेजर हैं या उनका कितना एक्सपोजर क्लियर है डिजिटल टर्म को? यही कंसर्न है यहाँ पे। बस लोग ये समझते हैं कि क्योंकि मैं तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे मौजूद हूँ, मेरी कैंपेन चल रही है, तो बस मैं डिजिटल हो गया। तो यहाँ पे हम इसी को आज कह रहे हैं कि क्या हम उस इम्पोर्टेंस को और उस लेवल को समझते हैं कि डिजिटाइजेशन एंड एडाप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एक्चुअली है क्या। सो आई थिंक फराज भी हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं। फैसल आप भी फिर अपना इनपुट दीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा इसका ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक एक डिजिटल पेमेंट कंपनी से है और आजकल एक बज़वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, आप सबने भी सुना होगा, और उसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे लोग आ जाते हैं। फिनटेक
फिनटेक का बज़वर्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर है पाकिस्तान में, और जिसके पास थोड़ा सा भी पैसा है, जिसके पास थोड़ा सा भी विजन है, तो वो ये कहता है कि मैं जो हूँ एक पेमेंट कंपनी खोल लेता हूँ या एक फिनटेक खोल लेता हूँ और मैं जो है ना पेमेंट को डिजिटाइज कर देता हूँ। और हमने थ्रू आउट लास्ट अगर आप 4-5 ईयर्स देख लें तो काफ़ी कंपनीज जो हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई पेमेंट्स को लेके, एंड दे वर नॉट एबल टू सक्सीड। So what I see, I agree with कामरान साहब and इफ्तिखार साहब के हम बज़वर्ड्स के पीछे ज़्यादा जा रहे होते हैं रादर देन कि हमारी पूरी स्ट्रॉन्ग स्टडी हो उस पूरे सब्जेक्ट के ऊपर, हमारी बहुत क्लैरिटी हो कि हम कोई चीज़ अगर डिजिटल करना चाह रहे हैं या ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, सो उसके पीछे जी आई थिंक फराज डिस्कनेक्ट हो गए। जी फराज आपका शायद वो डिस्टॉर्शन चल रही है। हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। जी फैसल आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? ये आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी तो मैं मेरा पॉइंट ये था इसमें कि हम कोई भी चीज करें चाहे जितनी भी, क्योंकि हमने नया पे में वी टुक लाइक 3 years टू बिल्ड दिस नया पे, लेकिन उसका पर्पस ये था कि वी डोंट वांट टू बी अनदर फिनटेक और अनदर ऐप जो कि आए लोगों के हाथ में और कुछ इंसेंटिव्स दे और लोग चलाएं और उसके बाद जब वो इंसेंटिव खत्म हो तो पूरी ऐप डाई आउट हो जाए, which we have seen so far in this industry. So I agree with participants here that we need to create awareness and we need to work on the needs rather than just bring out buzzword और उसके ऊपर एक टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट लाके और हम लगा दें। So फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी तो हम बहुत पीछे हैं, आपके पास कुछ है ना? सॉरी किस चीज में? फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम जी उसका ना बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि वो रीजन क्या है। वो रीजन ये है कि आज अगर मैं आपके पास आप जितनी भी ऐप्स देखें वो आपके पास आती हैं और उसमें से बहुत कम ऐप्स हैं, मगर विद टाइम अब अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत सारे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो लेके आ रहे थे, जो फिनटेक्स आ रहे थे, उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि उन्होंने फैंसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया कि आप जाके बर्गर खा लें, आप जाके फला चीज़ खा लें और उस पर ये डिस्काउंट ले लें। जैसे उमर साहब कह रहे थे कि गो लूट लो क्या है। सो अब उमर साहब इज फ्रॉम एजुकेटेड कैटेगरी, एक एजुकेटेड क्लास से हैं और एक ऐसी इंडस्ट्री से हैं जो कि टेक बेस्ड इंडस्ट्री है। जब उमर साहब को आइडिया नहीं है तो फिर हम आगे जाके मासी से क्या बात करें। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है ना, उसमें मसला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप एक तो राइट यूज केसेस को टारगेट नहीं कर रहे, लोगों के मसाइल को आप हल नहीं कर रहे। ठीक है, कोविड आया, अब लोगों को थोड़ा सा ये हुआ कि अब मैं स्कूल फीस भी ऑनलाइन दे दूं, मैं अपनी यूटिलिटी बिल्स भी ऑनलाइन दे दूं, क्योंकि मैं जा नहीं पा रहा बैंकों तक। तो एक नीड अब उनको समझ में आई। दूसरी एक साइड तो आपने ये किया कि एक साइड आपने लोगों की नीड को एड्रेस नहीं किया, दूसरा आपने अगर कुछ किया तो उसको प्रॉपरली यूजर्स को अवेयर नहीं किया। मैच के अंदर अगर मुझे एक ब्रांड नजर आ जाता है और वो विकेटों में भी लगा हुआ होता है और वो पीछे छक्का लगने पे भी उसका एक लोगो आ जाता है, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता कि ये क्या चीज़ है या ये क्या कर रहा है तो इट्स यूजलेस फॉर मी। तो ये पूरी जो हमारी इस वक्त अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल इंडस्ट्री का मसला ये है कि हम लोग एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए और हम भागे जा रहे हैं एक ही दिशा में, जबकि कोई ये नहीं सोच रहा कि यूजर की एक्चुअल नीड क्या है, उसको हम कैसे एड्रेस करें और उसको कैसे लेके आए, उसको अवेयर कैसे करें। तो ये बहुत मेजर इश्यूज हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन में मसले आ रहे हैं। प्लस हमारी इस वक्त जो एजेंसीज हैं जिनको सपोर्ट करती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को उनको भी अपने आप को अप टू डेट करना होगा और उनको भी स्पीड अप करना होगा। जैसे भी डिजिटल पाकिस्तान का एक फोरम बना है और वहाँ ये एजेंसी सारी शामिल हुई हैं,
लेकिन उनको भी अपने आप को स्पीड अप करना होगा ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को वाकई ही इफेक्टिव बनाया जा सके। ठीक है, अच्छा थैंक एक यू चीज मैं हेलो थैंक यू फराज। केवल मैं इसमें अस्सलाम ऐड वालेकुम करना फराज चाहूँगा। थैंक यू अब्दुल्ला। आई थिंक हम फैसल मैडम का थोड़ा सा फीडबैक ले लें, देन आई कल टू कम टू फोजिया एंड जैनब, फिर इंशाल्लाह उनसे भी बात जी करते हैं। इसमें जी जी माइक काइंडली ऑफ कर दें क्योंकि काफ़ी नॉइज आ रहा है। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि कोविड-19 को या तो हम थ्रेट के तौर पे लें या अपॉर्चुनिटी के तौर पे। हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर इसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ करना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों ने इसको एज अ थ्रेट लिया तो वो तो फेलियर की तरफ जाएंगे नेचुरली। जी अभी अगर हम जो चीज़ें हम पहले यूज़ नहीं करते थे, आज वो हमारे बच्चे यूज़ कर रहे हैं। सही जिसमें टीम मीटिंग की बात करें, जूम की बात करें, पहले इन मीटिंग्स का कोई सोचता भी नहीं था, बहुत मिनिमम यूज़ करते थे लोग। और आज देखें टेक्नोलॉजी किस तरफ मूव कर रही है कि हम बच्चों को वही चीज़, हमारे बच्चे उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो चेंज तो आया है और काफ़ी बिजनेस इसमें अगर देखा जाए जो कि पीक पे थे उनको काफ़ी नुकसान भी हुआ है उसकी वजह से, और जो बिजनेस इस पर सर्वाइव कर रहे हैं वो उसमें नेचुरली आगे मूव कर रहे हैं। फराज ने जिस तरह से कहा कि नेचुरली हम आईटी के लोग हैं जो अपनी इंडस्ट्री में या कहीं भी इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है या नहीं। हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। ये कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है और आपकी इंडस्ट्री में नेचुरली उसकी तरफ से प्रेशर आता है, मैनेजमेंट की तरफ से भी, मेंबर्स की तरफ से भी आता है कि जी इस चीज़ को अडॉप्ट किया जाए, लेकिन नॉट नेसेसरली कि वो आपके लिए भी फायदेमंद है। तो राइट चॉइस हमेशा वो आईटी के जो बंदे उस एरिया में काम कर रहे हैं वही आपको गाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे लिए। अच्छा, बिजनेस नेचुरली एक इनपुट तो ज़रूर देता है। वो आजकल का जो कस्टमर है वो उस तरह का नहीं है जो पहले हुआ करता था। वो भी टेक्नोलॉजी में इन है और उसी तरह से वो तमाम चीज़ों को देख रहा है। आप जिस तरह से सिंपली वेबएक्स की एग्जांपल लें, जूम की एग्जांपल लें, अगर आपने शुरू ना भी किया हो ना तो लोगों ने अपने तौर पे जूम और इस पे अकाउंट्स क्रिएट करके और मीटिंग शुरू कर दी। इसी तरह से ERP सॉल्यूशंस की बात करें तो अब लोगों ने ERP सॉल्यूशंस तो लगा लिए, लेकिन उसमें वही ट्रेंड चलता रहा कि जी की पंचिंग एक ही जगह से होती रही और उसको ऑनलाइन यूज़ नहीं किया जा रहा, बल्कि बैच प्रोसेसिंग के तौर पे यूज़ किया जा रहा। जिन इंडस्ट्री ने इसको ऑनलाइन की तरफ ले गए नेचुरली उन्होंने बेनिफिट भी लिया। अब डेटा तो जमा हो गया, नेक्स्ट स्टेप जो था वो नेचुरली आपके पास BI और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, उसकी सारी चीज़ें आपको अब कंपाइल करके आपको रिजल्ट्स चाहिए। तो टूल्स अवेलेबल हैं, उसको यूज़ किस तरह से करना है वो नेचुरली हम लोग हैं जो गाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फैसल। अच्छा, हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, 8:45 पे जो ये सेशन बंद हो जाएगा, तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आप हम अपनी इनपुट दे रहे हैं उसको थोड़ा सा हम शॉर्ट और कम्प्रिहेंसिव रखें। सो वी हैव फौजिया माशाल्लाह, फौजिया आप हैं यहाँ पे? जी हाँ जी फौजिया, तो हम आपका भी ज़रा थोड़ा सा इनपुट लेना चाहेंगे। इफ़ यू नो द टॉपिक, अगर आप समझती हैं, या मैं आपको रिपीट कर दूँ कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो मैं रिपीट कर दूँ आपको। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, कैन यू हियर जी मी? अब जी जी हाँ, I know the topic. It is usage of technology in business, right? This is the topic, right? हम इसी पे ही बात कर रहे थे कि इस वक्त हमारी जो इम्पोर्टेंस है फॉर द बिजनेसेस, क्या हम उस इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, स्पेशली फॉर अडेप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन। देखो अभी ये होता है, हाँ, जैसे जो मेरा इस पे ये टेक है कि अभी सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट ओनली कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, बट इसमें आपको बिजनेस प्रोसेसेस, यू हैव टू चेंज योर बिजनेस प्रोसेसेस आल्सो। दैट इज व्हाट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो आप ठीक है, जो भी आप गैजेट लेके आ रहे हो, ठीक है, अभी देखो कितने सालों से सिर्फ सॉफ्टवेयर बनते आ रहे हैं, अभी नई चीज़ नहीं है। ऑटोमेशन मीन्स, ऑटोमेशन तो कब से चल रही है। जब डिजिटल की बात आती है तो इट मीन्स कि ऑब्वियसली यू नीड योर क्विक डिसीजन ऑफ एनी ऑफ योर प्रॉब्लम, राइट। डिजिटल टेक्नोलॉजी जो बीच में आती है, इसको ये डिफरेंस हुआ ना कि आपका ऑटोमेशन तो पहले भी हो रही थी, पेरोल सिस्टम बन रहे हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम बन रहे हैं, पर कोर बैंकिंग सिस्टम में जो डिजिटल का बात आता है तो मीन्स के यू हैव टू टेक अ क्विक डिसीजन कि आपकी अकाउंट ओपनिंग जल्दी हो जाए, यू अंडरस्टैंड। तो उसमें आपको बिजनेस प्रोसेसेस चेंज करने होंगे, बिजनेस के साथ बैठ के IT,
and then you can implement digital technology. ये मेरा इस पे टेक है कि इसमें इट्स नॉट कि हम कहते हैं कि IT वाला करेगा, नो इट्स नॉट लाइक दैट. There has to be a very close collaboration between business and IT team. आप प्रोसेस चेंज करें, कोर बैंकिंग पहले भी था, पेरोल पहले भी था. पेरोल के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप किस तरह लाओगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कि आप अपने प्रोसेस को स्मार्ट बनाओ, राइट? जैसे ऊपर है, ऊपर आपको 2 मिनट में आपको हल करता है प्रॉब्लम आपकी ना, आपकी क्लिक ऑफ बटन पे. इस तरह से आपकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ऑटोमेशन में भी हुई होगी, बस उसको कितना स्मार्ट बनाने के लिए you have to include digital in it. ये मैं थैंक यू. इजाज आप कुछ ऐड करना चाहें? इजाज अनवर. कमल, मैं ऐड करना चाहूँगा फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव. कोई और अभी स्लॉट फ्री है तो 2 मिनट में जो भी चाहिए. जी श्योर. अच्छा, ये डिजिटलाइजेशन की हम बात करते हैं, बट टू स्टार्ट विद पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हम डिजिटल को सिर्फ ये समझते हैं कि यार वेबसाइट ऑन कर दी, अपनी सर्विसेज को वेबसाइट पे ले गए, आपने पेमेंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर दी, दैट इज डिजिटलाइजेशन. ठीक है, ट्रू, ठीक है, डिजिटलाइजेशन का एक एस्पेक्ट है, बट इट्स अ वैल्यू चेन. जब तक आप पूरी वैल्यू चेन को लेके नहीं आते, जब तक आप स्मार्ट डिजिटलाइजेशन को अचीव नहीं कर पाते. ठीक है, अब उस वैल्यू चेन के अंदर साइबर सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड से हूँ तो मैं ज्यादातर टॉपिक शायद मेरी बात का जो एक सर्कल होगा वो साइबर सिक्योरिटी होगा. लोग साइबर सिक्योरिटी को या सिक्योरिटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. वो कहते हैं यार अच्छा हमने सर्विसेज ऑन कर दी, क्योंकि बिजनेस कहता है टाइम टू मार्केट बहुत कम है. ठीक है, सर्विस मैंने ऑन करनी है क्योंकि मेरे कंपटीटर ने ये चीज लॉन्च कर दिया तो हमें वी हैव टू लॉन्च इट. तो लोग लॉन्च कर देते हैं. साइबर सिक्योरिटी का सबसे आखिर नंबर आता है, साइबर सिक्योरिटी का सबसे आखिरी नंबर आता है, बट ये अदर वे राउंड है. क्योंकि साइबर सिक्योरिटी को जब तक आप पहले लेके नहीं आएंगे तो आप ट्रू मैनर्स में डिजिटलाइजेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे. क्यों? उसकी वजह यह है कि लोग कस्टमर डाटा को फोकस नहीं करते कि अगर मेरा डाटा ब्रीच हो गया, मेरी साइट ब्रीच हो गई तो क्या होगा. आई नो मैनी ऑफ द कंपनीज, ठीक है, जो अपनी वेबसाइट पे चीजें सेल आउट कर रहे हैं. ठीक है, आई मीन ऑनलाइन सेलिंग ब्रांड्स, बट उनके एडमिन के यूजर नेम पासवर्ड जो है ना वो वेबसाइट्स के ऊपर पड़े हुए. एनीवन कैन, अगर कोई अच्छा हैकर है तो वो जाएगा, एडमिन के यूजर पासवर्ड निकालेगा और ऑर्डर्स को चेंज कर देगा. ठीक है, असफर मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा. कल मेरी एक साहब से बात हो रही थी, मैं सबके लिए भी ये छोड़ देता हूँ. वो ये बता रहे थे कि ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ ERP इम्प्लीमेंटेशन, SAP और सब के सर्टिफाइड हैं वो. तो वो ये कह रहे थे कि अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं ERP तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं होते हैं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जाके कोई कहानी आती है कि जी हम साइबर सिक्योरिटी में भी अपना, तो सो अब बहुत हमने ग्रांटेड लिया हुआ. यू आर एब्सोल्युटली राइट. सो आई थिंक हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स, हम तो थोड़ा सा सबको और भी मौका देते हैं. आप कुछ ऐड. कमल, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी टू कंटिन्यू विद साइबर सिक्योरिटी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और जो इफ्तिखार ने कहा ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास एज CIO, CTOs एंड टेक पीपल, क्योंकि इस वक्त बिजनेस, वर्ड पता नहीं डेस्परेट सही है या नहीं है, बट इस वक्त बिजनेस ढूंढ रहा है सोल्यूशन. पहले हमें पीछे भागना पड़ता था, अब जिस तरह इफ्तिखार ने कहा जो बजट्स पहले अप्रूव नहीं होते थे अब वो अप्रूव हो रहे हैं. तो क्या, और ये हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को अधूरा ना छोड़ें. जैसे फौजिया ने कहा कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आए, हमें ये पहले भी करना चाहिए था, मगर अब ये जिम्मेदारी आई थिंक डबल हो गई है. क्योंकि आप समझें कि अगर बगैर गवर्नेंस, बगैर सिक्योरिटी के हम टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, बगैर प्रोसेसेस इम्प्रूवमेंट के टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, तो वो टेम्परेरी रिलीफ है बिजनेस के लिए. वो रिलीफ बिजनेस को फौरन पता चल जाएगा और फिर वही बात होगी कि IT के बजट्स अप्रूव नहीं हो रहे. मगर ये एक हमें एज IT पीपल वी शुड बी टेकिंग दिस एज अ अपॉर्चुनिटी. अभी तो इंडस्ट्रीज ट्रांसफॉर्म हो रही हैं. फॉर द लास्ट 3 years, मैं एजुकेशन में एंगेज हूँ और मैं जितने भी सेमिनार्स और जितने भी टॉक्स अटेंड कर रही हूँ, आप देखें ना एजुकेशन के साथ क्या हो रहा है. हर एक का बच्चा इस वक्त घर में पढ़ रहा है ना ऑनलाइन, एटलीस्ट हमारे जैसे घरों में. मगर आपको पता है गवर्नमेंट ने मैंडेट दे दिया है कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स वाले, तो वो लोग परेशान है कि अब वो कौन सी चीज एंगेज करें. तो व्हाट्सएप यूज हो रहा है, तो एवरीबडी इज यूजिंग इनोवेटिव वेज, बट एज मैच्योर प्रोफेशनल्स हमारे पर बड़ी जिम्मेदारी है कि हम वो चेंजेस लेकर आएं जो इस वक्त एडिशनल बेनिफिट दें बिजनेस को.
ताकि जो बिल्कुल, कोरोना टेक्नोलॉजी का सिखा जो रहा एक है हमें। बहुत बड़ा गैप था जी, बिल्कुल। हमारे मुल्क में, और जो लोग सिर्फ लाइसेंसेस लेने में बिलीव करते थे, ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं बिलीव करते थे, टेक्नोलॉजी की बेनिफिट में बिलीव नहीं करते थे, तो ये वाला मौका है हमारे पास जो हम जी, ये कर बिल्कुल। सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। कोरोना हमें सिखा रहा है जी। एजाज साहब, आप फाइनली अपना कोई इनपुट दें। अच्छा, आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही एजाज साहब। आई गेस आप ऑन ऑफ कर लें। आई थिंक हम वी शुड टेक फ्रॉम यासिर। यासिर, आप कोई इनपुट देना चाहें इस टॉपिक पे? काशिफ, कैसे हैं आप? जी, आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही। कामल? जी, अब आ रही है। जी, अब आ रही है। नहीं, दिस इज अब्दुल्ला. ओके, अब्दुल्ला जी। Ji, Assalamu alaikum everyone. And just 2 cents, since we are still unable to connect with a few people, so I'll take this opportunity and speak up for 2 minutes. Very rightly touched upon और बहुत ही important points पे सारी चीजें हो रही थी. तो just to add in as a part of it कि ये सारी चीजें जिस पे हम बात करें, जिसमें के including information security से लेके और coming up with new initiatives and best practices. इसमें हम if we add up something called collaboration, that would also I suggest, or I think my 2 cents again कि I think कि collaboration में अगर काम करते हैं that would help all of us. And secondly ये कि in the new normal एक और responsibility, क्योंकि IT की planning में IT में वैसे ही obsolescence बहुत तेजी से आती थी और नई चीजें आती थी, चाहे वो information security हो, चाहे वो hardware हो, चाहे वो cloud technology हो. तो इस साइड पे अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल में ये है कि वी हैव टू ऑब्वियसली गिव और डेवलप और कम अप विद लाइक 3 महीने 4 महीने शॉर्ट टर्म प्लान्स जिसमें कि हम फर्दर फ्लेक्सिबिलिटी रखें आगे. तो दीज आर द न्यू वेज ऑफ वर्किंग जिसको कि हमें शामिल करके और टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ जहाँ पे कि थ्रेट आने के बाद हम जो सर ने बिल्कुल सही कहा, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं और जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद परेशान होते हैं. तो दिस इज अ सिचुएशन जहाँ हो गया है. वही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जिसके लिए हम भागते थे कि ट्रेनिंग ले लो, अब वो हमारे पास आके बैठे थे कि ट्रेनिंग दें और सेशन अटेंड करें. बिल्कुल सही. So if this is an opportunity to let's sell this idea as well to the business end. बिल्कुल सही. Let's look into the opportunity. थैंक यू सो मच अब्दुल्ला. आप हमेशा ही बड़ा ज़बरदस्त इनपुट वो देते हैं, आइडियाज़ देते हैं. सो वी हैव वेरी सीनियर CIO अशफाक अहमद. अशफाक, इफ यू कैन हियर अस. अशफाक जी बिल्कुल बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम जी. आप थोड़ा सा लेट हैं, वेट कर रहे थे काफ़ी टाइम से. So Ashfaq is actually heading the EFU Live and he is one of the most amazing CIOs in Pakistan. ये काफ़ी टाइम फीचर्ड हुए हैं across the world और इनका ARY ने भी एक फीचर किया था, one of the top CIOs in Pakistan. So Ashfaq, आप आज हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन के बारे में और मैं एक थोड़ा सा एडवांटेज लूँगा. सो रहीम साहब यहाँ पे हैं फ्रॉम सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. जस्ट एक अपना मैं सजेशन दे दूंगा, फौरी तौर पे जहन में आया तो मैं बोल रहा हूँ. रहीम साहब, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि जैसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होती है और उसको ये कहा जाता है कि आपने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑन बोर्ड लेके अपना एक एनुअल ऑडिट करवाना है, सो क्या IT को भी इसी तरह ऑन बोर्ड लिया जा सकता है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और उसको IT ऑडिट भी कराना हो या उसको किसी स्टैंडर्ड्स को मीट करना हो? क्या SECP इस तरफ भी देख सकता है? जस्ट अ सजेशन. Definitely, it can be seen, but I would say that I haven't seen any such suggestions in the official. जो जहाँ पर corporate sector से ताल्लुक है या corporation पाकिस्तान में, there are very established formal bodies. रहीम साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी. आवाज थोड़ी हल्की आ रही है. आवाज हल्की आ रही है. तो मैं ये कहता हूँ, देखिए जहाँ तक कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेट सेक्टर इन पाकिस्तान इज कंसर्न, देयर वेरी एस्टैब्लिश्ड बॉडीज जो काम करती हैं इन दिस डोमेन. ICAP है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल है, CCI है, डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सेट्रा. And what they do is usually work with SCP in terms of engagement, providing the recommendations. For example, companies law may specifically बहुत सारे changes हुए हैं businesses को facilitate करने के लिए. Firstly, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, those changes were approved
very recently came into common legislation, etc. So to answer the question, I think there is a study body which can give the suggestions and solutions formally, which can then be assessed and the required changes can be made. Okay. In the past, I remember attending a webinar earlier, उसमें for example किसी की suggestion थी कि आप there was one exchange कि आप try to ban cash payments, for example. Try to promote digital payments. Instead of banning, for example, क्या ऐसा legal framework लाया जा सकता है जहाँ पे लेकिन फैसिलिटी companies और incentivize them to move towards these channels. अच्छा, ठीक. So again, like I said, I think it's a तरीका यही होता है कि you engage with the regulator, providing the suggestions, those get assessed, and then industry engagement होती है, and then requisite legislation like process है that is followed for it. ठीक सर, thank you. Again, I'll come back to Ashfaq. जी अशफाक, अब आपका इनपुट हम लेना चाहेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन देखें, बिजनेस के साथ कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जैसे सबने कहा, फौजिया ने कहा और भी लोगों ने कहा कि एक्चुअली बिजनेस के साथ अब चीज़ें काफ़ी तेज़ी से मूव हो रही हैं. पहले अब्दुल्ला ने जैसे कहा कि हम टीम के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीछे पड़े होते थे कि अब इसकी ट्रेनिंग ले लें, आप इसको यूज़ कर लें. अब फॉर्चुनेटली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेसिकली यूटिलाइज होनी शुरू हो गई हैं. हमने अभी रिसेंटली 2-4 प्रोजेक्ट्स बहुत अपनी सेल्स फोर्स के साथ किए हैं, उनको इनेबल किया है. जूम कि एवरीबडी, आपको मिलना तो चाह नहीं रहा. पर्सनली हम इंश्योरेंस सेल करते हैं, इंश्योरेंस में हमारे लोग ज़्यादातर ट्रेंड हैं विद पर्सनल मीटिंग्स वगैरह के हवाले से. सो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी लोगों के साथ बात हो रही है और बिजनेस उसी तरह से एज यूजुअल आई थिंक चला है. चीज़ें जो हैं आप कुछ थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, कुछ लोगों ने एक्चुअली रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया है. और एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हमें ये सब रियलाइज़ करना पड़ेगा कि कोरोना इज़ हेयर और कोविड इज़ हेयर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और ये शायद अब डे टू डे के अंदर हमें इसके साथ वी नीड टू लिव नाउ. सो टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज़ है जो बिज़नेस को हेल्प कर सकती है और टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. सो दैट्स आई थिंक. थैंक यू अशफाक. वी हैव एजाज. एजाज देखें आपका माइक चल रहा है. जी मैं मोबाइल से आया हूँ. ओके, नाउ इट विल वर्क. जी जी बिल्कुल ठीक है, वी कैन हियर यू. राइट. तो यार काफ़ी अच्छी डिस्कशन अभी तक हुई एंड आई टेंड टू एग्री विद इफ्तिखार एंड उमर. बेसिकली व्हाट आई हैव सीन इन माय एक्सपीरियंस इज दैट ओवरऑल आवर एटीट्यूड जो है ना हमारा इन एडॉप्शन, नॉट ओनली इन टेक्नोलॉजी इन जनरल, वो बड़ा पैसिव है. जब तक एंड पे एक्सट्रीम नहीं हो जाती ना तब तक हम कुछ नहीं करते. एंड वन ऑफ द प्राइम रीजन probably is because we are a consumer oriented market, right? We are the 5th largest population in the world. लेकिन अभी तक आपने जितने भी नाम सुने हैं इस डिस्कशन में इवन आए हैं, इवन ये जो टूल हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए, नन ऑफ देम इज के जो हम में से यहाँ पर क्रिएट किया गया हो. इवन अगर हम टॉप जो जितने भी ग्लोबल लेवल के ऊपर आपको बड़े नाम नजर आते हैं उनमें हमें पाकिस्तानी नहीं नजर आते इतने, right? Which in itself is a threat के we are not among the producers in the future. हम consumers हैं, and with that mindset basically the maximum that we reach is that कि हम अपने एक काम किया है and it works for you, तो ठीक है मैं भी फिर वही काम कर लेता हूँ. लेकिन मैं खुद से नहीं करूंगा कि देखूंगा. और जैसे हमने बात की कि जब डिजिटाइजेशन की बात करें या ऑटोमेशन की बात करें, जब हम टेक्नोलॉजी को बीच में लेकर आते हैं ना तो उसमें बड़ा की होता है. मैं अभी एक पार्टिसिपेंट ने इसमें बात की थी बिजनेस प्रोसेसेस को री इंजीनियर करने की, जो कि ओवरलुक हो जाता है ना. बजाय इसके कि हम बिजनेस प्रोसेसेस को री इंजीनियर करें, हम टेक्नोलॉजी को बेंड कर देते हैं. हम कहते हैं कि जनाब आप टेक्नोलॉजी को इस तरीके से करें बिकॉज दिस इज द वे हम ये काम करते आए हैं और हम इसको ऐसे ही कैरी ऑन करेंगे. बिकॉज द चेंजेस दैट यू आर आस्किंग फॉर ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. एज अ रिजल्ट होता ही है कि हमारे यहाँ कहीं स्टैंडर्डाइजेशन कभी हुई नहीं. आप अपने तरीके से आपने ERP इम्प्लीमेंट कर दिया, मैंने अपने तरीके से कर लिया, हर बंदे ने अपने तरीके से कर लिया, हर बंदे की अपनी एक डेफिनेशन है.
और चाहे वो फिनटेक की है, चाहे वो डिजिटाइजेशन की है, या इससे पिछली भी सारी चीज़ें हैं। तो इट स्टार्ट फ्रॉम देयर एक्चुअली। और हम में से हर बंदा जो है वो बज़वर्ड के पीछे ही जो है वो सर्कल अराउंड करता रहता है। उसकी एक रिसेंट एग्जांपल है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। थैंक यू right. एजाज। आसिफ देखिएगा आपका माइक चल रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी भी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। अदनान जी जी, रहीम साहब आप कुछ कह रहे थे? रहीम साहब आपका माइक भी म्यूट है। अदनान आप अपना इनपुट अगर कोई देना चाहें प्लीज। जी अदनान। जी, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से है। इसमें एक जो ऑटोमेशन जो हमें हेल्प किया है पिछले 2 महीने में, वो ये है कि कस्टम्स की जो एक ऑटोमेशन है उसमें एक बहुत बड़ा एक जंप आया है कि आपकी जो सारी क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग है वो एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू हो रही है। हाँ, बेशक इसमें एक लैग्स आए हैं जिसके अंदर शिपिंग टाइम पे नहीं पहुंची है, या शिप लगने में बहुत टाइम लग गया। अभी ईद की जो छुट्टियां थी उसमें एक जहाज हमारा 10 दिन के बाद लगा, जबकि वो 10 दिन बाहर ही खड़ा हुआ था और बहुत ट्रैफिक था पोर्ट कासिम के अंदर। इसके अलावा ये है कि पेमेंट का जब पेमेंट का टाइम आया और जब क्लियरिंग का टाइम आया, वो विद इन आप समझे 24 आवर्स हो गई। 24 आवर्स में क्लियरिंग भी हो गई, क्लियरिंग का जो पेमेंट थी वो भी हो गई, और उसके बाद जो है वो सारा उसका एक डिस्पैच का मामला भी शुरू हो गया। तो जो अभी 2 महीनों में जो हमें जो सबसे बड़ा एक फ़ायदा मिला वो ये कि हमारी क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग बड़ी ऑटोमेटेड हुई हुई है, और इसमें जो 1 साल से वीबॉक का सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी चेंज आई है। इसके अलावा एक और भी जो है SCCP की जो फाइलिंग्स है उसके अंदर भी एक जिद्दत आई है, जिसके अंदर वो ऑटोमेटेड हो गई है, और अभी इन्होंने कुछ टाइम भी दिया है SCCP ने कुछ रिपोर्ट्स फाइल करने का और आपके अपने अकाउंट्स वगैरह फाइल करने हो, तो वो भी बहुत ऑटोमेटेड हो गया है। तो ये चीज़ तो है, बट इसके अंदर फिर आगे जाके अगर मैं अपनी सप्लाई चेन में जब मेरे सेल्स ऑर्डर्स बुकर्स जो जाते हैं वो हमारा अभी नहीं है, और कोविड के अंदर इतना बड़ा हमें फ़र्क नहीं मिला है। जहाँ तक हमारी पेमेंट्स हैं वो बहुत सिक्योर्ड हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन के थ्रू आ रहे हैं, यानी कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो रिटेलर्स हैं वो जो भी हैं हमारी पेमेंट जो है वो ऑनलाइन भी भेज रहे हैं और इवन ATM के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी इतना बड़ा कोई इशू नहीं आया है। तो ये मैं बात कर सकता हूँ अपने हवाले से, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम लोग जो हमें पिछले 2 महीनों में हमें जो चैलेंजेस भी आए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज भी आए, जो एक स्ट्रीमलाइन भी चीज़ें हुई। ठीक, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। मुझे अलाउ करेंगे एक पॉइंट पे? जी जी इफ्तिखार। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। ये जो हमारे पास इस वक्त हम ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, लास्ट 3 मंथ्स एक तरह से आप देखें ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंटल इनोवेशंस हुई है। कोई प्लान ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारे पास जब कोविड आया मार्च में तो लोगों को पता ही नहीं था करना क्या है। अप्रैल के पूरे महीने में सिर्फ एक काम हुआ कि हमने अपनी मैनेजमेंट को वीडियो कॉन पे डाल दिया। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट को, लोगों को ये पता चल गया है कि ये इट्स अ न्यू नॉर्मल, तो अब जो हम बात कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, तो डिजिटल इनोवेशन का दिस इज द राइट टाइम। आप देखिएगा कि जब आपका फोरम दूसरे तीसरे से बढ़ के जब चौथे पांचवें में बात कर रहे होंगे तो हर बंदे के पास एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स हो। अभी तक तो 2 महीनों में रमज़ान पहले गुजर गया, लोगों ने कहा कि किसी तरीके से ऑपरेशंस को रन करें, जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंटल था, वो इनोवेशन का पार्ट नहीं था। लेकिन दिस इज द राइट टाइम कि अब इन 6 महीनों के अंदर जब हमें पता है कि ये कहीं नहीं जाना, हमने इसी तरीके से काम करना है, तो टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और हम जब नेक्स्ट टाइम बात कर रहे होंगे ना, तो आप देखिएगा कि आप डिजिटल इनोवेशन की जो सही डेफिनेशंस है ना, उन पे हम बात कर रहे होंगे। इट्स नॉट जस्ट कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर दी या डिजिटल पेमेंट कर दी, उसके सही रिजल्ट्स जो हैं वो अब आना शुरू होंगे। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ, अभी हमारी नेक्स्ट बिग बोर्ड मीटिंग है 1 हफ्ते के बाद, जिसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ये बात किया जाएगी वे फॉरवर्ड क्या है। जो कुछ हमने प्लान किया था इन 2019 दिसंबर के अंदर, उनमें से 50% प्रोजेक्ट्स तो फिजिकल ना होने की वजह से हो ही नहीं सकते, कुछ बजट कंस्ट्रेंट्स आ गए। लेकिन अब जो इनोवेशन है, अब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कनेक्टिविटी की, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बात करूँ जो अली रज़ा भी कह रहे थे कि कोलैबोरेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस फोरम पे जितने भी लोग हैं, अगर वो एक छोटी छोटी लर्निंग से जॉइंट हैंड्स करना शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग विद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन विद रिटेल, रिटेल विद बैंकिंग सेक्टर या पेमेंट,
तो आप यकीन करें हम बहुत जल्दी वो चीज़ अचीव कर पा लेंगे जो अभी हम डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर मौजूद है। बिल्कुल सही है। थैंक यू इफ्तिखार। यासर, आप नज़र नहीं आ रहे थे हमें, तो हमने आपको 1-2 बार अटेम्प्ट किया। आप अपना कोई इनपुट देना चाहें? Actually, I was not there. Can you hear me? कमल एक Can you hear me? जी यासर, हम आपको सुन पा रहे हैं। Actually, just to add briefly to that, can I speak? जी बिल्कुल, आपको ही मौका दिया गया है। Hello. जी यासर, आप सही बात कर रहे हैं। आप प्लीज यासर को यकीन नहीं आ रहा। At this basically discussion में क्या ऐड करूँगा, देखिए अपॉर्चुनिटी, ये कोविड की सिचुएशन में हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस तरह से है कि द सीरियसनेस comes from every business department. Like everyone is saying कि अब हमारे जो processes हैं वो आप इतने इंडिपेंडेंट करें कि हम उनको रिमोटली भी ऑपरेट कर पाएं. Although we have implemented ERP systems since last 10 years, but still we have so many processes that demands कि हमारी manual presence वहाँ पे हो किसी physical location में, ऑफिस में. But right after this situation, they are coming to us and telling us कि हमें enable करें कि हम किस तरह से अपने processes को रिमोटली ऑपरेट करें. तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास टू इंटीग्रेट द टेक्नोलॉजी विद द बिजनेस इन ऑल एरियाज, मतलब स्पेसिफिक एरियाज में बट और इन ऑल एरियाज. तो ये बड़ी एक मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास. कि अभी इसकी एग्जांपल एक मैं दूंगा, हमारे सेल्स के प्रोसेसेस हैं, सेल्स को प्रोसीड करना था बट फिजिकल वहाँ पे ऑफिस में लोगों की प्रेजेंस नहीं थी, बट स्टिल उनके डॉक्यूमेंटेशन पे मैनुअल सिग्नेचरी बहुत सारी जगहों पे डिमांड थी, बट वो सारे एलिमिनेट कर दिए गए विद इन कपल ऑफ मंथ्स, जो कि लास्ट 10 ईयर से चल रहे थे, विच वी वुड नॉट बी एबल टू रिमूव जस्ट बिकॉज ऑफ एक माइंड सीईओ का, इनफैक्ट टॉप मैनेजमेंट का. बट राइट आफ्टर दिस सिचुएशन हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटी आई कि हमने सारे मैनुअल प्रोसेस रिमूव किए जो क्रिटिकल थे टू रन द ऑपरेशंस. तो अब ये एक बड़ा हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ऑल CIOs CTOs के पास कि हम अपने सारे मैनुअल प्रोसेसेस को रिव्यू करें, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग परफॉर्म करें. एंड देन सेकंड स्टेप आई वुड से कि फिर ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाना है, स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में इतनी रियलाइजेशन नहीं है, आई मस्ट से कि इतनी रियलाइजेशन नहीं है, बट अब ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है अमंग लीडर्स, बिजनेस टॉप मैनेजमेंट के अंदर कि वो सारे आप चाह रहे हैं कि प्रोसेस उनकी ऑटोमेट हो, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है. आप एक बहुत बहुत सारी चीजें जो है वो ऑनलाइन चली गई हैं. लोग घरों पे ग्रोसरी ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, लोग मेडिसिन ऑनलाइन मंगा रहे हैं, और ये सिर्फ इस तरह नहीं है कि एक वेबसाइट बन गई और उसके बाद आप वहाँ से ऑर्डर कर रहे हैं. इसके पीछे पूरी जो सप्लाई चेन है उसको कंपनीज ने विद इन फ्यू डेज जितना हद तक हो सकता था ऑनलाइन किया है. कस्टमर फेसिंग तो हो ही गई है ऑनलाइन, लेकिन उसके बैक एंड पे पूरा जो निज़ाम है, पूरा जो सिस्टम है, उसको भी ऑटोमेट कर रहे हैं, उसको भी डिजिटाइज कर रहे हैं. तो नाउ पीपल आर इन दिस फेज कि दे हैव टू गो ऑनलाइन इन एनी केस. मैं बहुत सारे रिटेलर्स को ऐसे जानता हूँ जो ऐसे रिटेलर्स थे कि जैनब मार्केट में बैठे हैं या राफी सेंटर में बैठे हैं, and now they are forced to come online either on Daraz or any platform, या वो अपना एक e-commerce चैनल बना रहे हैं. So the realization is here, we just need to make most of it, and same goes for this payment industry, क्योंकि जब ये ऑनलाइन जा रहे हैं तो अब ऑनलाइन के साथ एक जो बहुत बड़ा जो कपल होगी चीज़ वो होगी ऑनलाइन पेमेंट्स, क्योंकि लोग आज कैश लेने और देने से भी घबरा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर भी आपको कोरोना के वायरसेस हो सकते हैं, या उसकी जो कैश हैंडलिंग है, या उसकी आपकी सोशल इंटरेक्शन है विद द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग योर थिंग. So we should take this as an opportunity, and now we should decide to transform ourselves into digital platforms. ठीक. थैंक यू फराज. अच्छा कमल, एक चीज ऐड मैं करना चाहूँगा. हेलो जी. कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं भी बेसिकली बता पाऊँ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना कॉल सेंटर को सॉफ्टवेयर बेस किया था 3-4 साल पहले.
निकाल के हमने एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कॉल सेंटर वो किया था। सो ड्यूरिंग दिस एक्चुअली कोविड एक्टिविटी ये कॉल सेंटर अवेलेबल था ऑन द ऐप। अब लोग घर से बेसिकली जो हमारे एजेंट्स थे वो सारे के सारे उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, उस ऐप के थ्रू दे वर गिविंग अ सपोर्ट। उसके अलावा एक जो चीज और जो बात हो रही है वो हो रही है पेमेंट सोल्यूशन की। IBFT हम इतने अच्छे से कह रहे थे कि आप अपने कस्टमर से एक्चुअली अपने अकाउंट्स लें और जितने भी ट्रांसफर हैं वो अकाउंट्स के थ्रू करें। अब इससे एक बहुत बड़ा फायदा वो ये हुआ है कि इकोनॉमी आपकी, क्योंकि कैश के ऊपर काम हो रहा होता है या आप बेसिकली किसी के थ्रू उन चीज़ों को दे रहे होते हैं जो भी पेमेंट्स कर रहे हैं या चेक्स दे रहे होते हैं। अब IBFT एक बहुत तेजी से ये बेसिकली रिकग्नाइज हुआ और लोगों ने अकाउंट्स देने शुरू किए। ऐसा नहीं है, डिजिटल एक्चुअली जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी लोगों के पास अवेलेबल हैं, बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज के उसको चैनलाइज कैसे करना है। एक जो सबसे अच्छा काम हुआ है कोविड के अंदर वो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। जो आपका कंज्यूमर है वो भी एक्चुअली अंडरस्टैंड करने लगा है कि टेक्नोलॉजी था कि लोग कहते थे कि बैंक अकाउंट को यूज करना बहुत रिस्की है, उससे बहुत सारे बेसिकली प्रॉब्लम्स होते हैं। बट नाउ जब लोग मिल नहीं पा रहे और इन चीज़ों को बैंक में जाना एक पूरा चैलेंज है और उसके साथ बहुत सारे उसके बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं, सो वो IBFT को या इस टाइप की जो पेमेंट्स एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर इसी तरह से सेलिंग ऑनलाइन पे बात हो रही है। अभी कल ही एक मलेशियन कंपनी है, मैं एक्चुअली उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक पोर्टल, ई-कॉमर्स का पोर्टल में, कंपनी तो खैर वो बाहर काम कर रही है, दुनिया जहान के अंदर काम कर रही है। दे आर वर्क विद अमेजोन के साथ भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में दराज के साथ काम कर रहे हैं और इंटरनेशनल बहुत सारे बेसिकली जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड हैं। तो कल मैं उनसे मिला तो वो पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपना डेवलपमेंट सेंटर बनाया हुआ है और वहां से वो दे आर बेसिकली इनेबलिंग दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल कंपनीज जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं। अब मैं हैरान था, वो मुझे बता रहे थे कि एक्चुअली पाकिस्तान की जो 2-4 मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस जिनके वो नाम ले रहे थे, उनका कभी पाकिस्तान से बाहर सेल करने का वो सोच नहीं सकते थे, बट उन्होंने उस प्लेटफॉर्म से उनको इनेबल किया और नाउ दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन Amazon और वो US में भी सेल हो रही हैं इस तरह की चीजें। तो अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या इस तरह के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर काफी तेजी से वापस आ रहे हैं और आकर अब पाकिस्तान के लिए भी काम कर रहे हैं। मैं 2-4 तो मैं अभी 2-3 से तो मैं मिला, क्योंकि हम भी कुछ ऑनलाइन सेलिंग के हवाले से कुछ थोड़ा इसको चैनलाइज करने की बात कर रहे थे। पहले ये था कि अब्दुल्ला ने जो बात की ना कोलैबोरेशन की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टाइम है, वी आर लिविंग इन द टाइम कि जहां पर कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन के ऊपर काम हो रहा है। सो आई थिंक ये वो 2-4 चीजें हैं जिनको बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक नहीं, ये होता है जी। सो थैंक यू सो मच। मैं तमाम पार्टिसिपेंट्स का एक बार और शुक्रिया अदा करूंगा। अभी कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स ने जो है थोड़ा सा लेट हमें ज्वाइन किया तो डिस्कशन को हम उस तरह नहीं ले जा सके, एंड थैंक यू वेरी मच वो लोग जिन्होंने इनिशियल स्टेज पे ज्वाइन किया, और स्पेशली उमर गुमन साहब, हम सब आपके लिए दुआ करेंगे कि आपकी जो है वो क्विक रिकवरी हो जाए। थैंक यू सो मच अब्दुल रहीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपको इंशाल्लाह हम एंगेज करते रहेंगे। एंड एवरीवन माशाल्लाह हमने ये फोरम बिल्ड किया है, एंड जैसे अब्दुल्ला ने या अशफाक ने बिल्कुल राइटली कहा, हम इंशाल्लाह अपने जो प्रोफाइल्स है इसको हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट कॉन्वो जो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। एंड यस, अगर हम इस फोरम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें और एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें, वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। और स्पेशली उस दिन मैं इफ्तिखार से मिला तो मुझे जिस तरह उन्होंने अपना पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड बताया, सो आई एम ग्लैड कि मुझे ये अगर पहले पता होता तो शायद हम और बहुत सारी चीज़ों में इनके साथ मिलकर काम कर चुके होते। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि वी शुड स्टार्ट नोइंग ईच अदर सो दैट हम कोलैबोरेशन की तरफ आएँ। और इस फोरम को हमने बिल्ड ही इस वजह से किया है कि हम एक वैल्यू ऐड कर सकें फॉर ऑल दोज मेंबर्स हु आर एक्चुअली ज्वाइनिंग, और उनकी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे भी हम उनको सपोर्ट कर सकें और एक ग्लोबल एक्सपोजर भी ले सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटअप में, इस बार भी हमारे पास 2 लोग थे, UAE की तरफ थोड़ा सा टाइमिंग का इशू था, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमें UK से भी लोग ज्वाइन करेंगे, दुबई से भी, मीना रीजन से भी, और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया से भी। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं तो एक बहुत ही
छोटी सी कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस फोरम को हम एक बड़ा एक सक्सेसफुल फोरम बना दें। तो आप लोगों की पार्टिसिपेशन, आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट जो है वो हमेशा रिक्वायर्ड रहेगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी। Thank you, Kamal. Thanks a lot. Appreciate it. Thank you. Thank you.